Hello student, welcome to my channel Malli Learning Hub beta. Today we will discuss a chapter of class 1 plus 1 linear inequalities beta. Okay, so what are linear inequalities beta? You have studied in your earlier classes about the equalities beta. Equalities, that is 2x plus 3y equal to 12, like this. Here is a sign of beta equality. Okay, but now we have to study the equations in which equality is not present. Either there is a sign of greater than, equal to, or less than, equal to, or either greater than or less than. Okay, these type of equations which have greater than sign, less than equal to sign, greater than or less than sign, these all are called inequalities. I will give you an example of what is the need of using these inequalities. Okay, let us take an example beta. Let us take an example. Let a person whose name is Mohit beta. Okay, Mohit has 200 rupees beta. Mohit has 200 rupees. Okay, and he want to buy a books beta, or he want to buy any article of price 30 rupees beta. Okay, he want to buy an article, ठीक है, any article whose price is 30 rupees beta. Then how can he buy? Because article is not, he has to buy full article. Okay, so let us suppose let number of articles beta, जिन्ने वो number of articles buy करदा, let number of articles bought equal to x. मान लो कि जो खरीद रहा वा बेटा x खरीद रहा. ओके, x खरीद रहा वा. ओके, तो एक दी प्राइस बेटा, the price of one article is 30 rupees. So how many articles, complete articles, he can purchase beta? Okay, that is, we have to find total price of one article into total number of articles. How much money he has? He has 200, total 200 rupees to spend beta. Okay, then how can he spend it? Okay, so that is, here we don't use equality sign beta. Okay, because he has maximum 200 rupees. How much how many articles he bought depend upon this amount. Okay, so we can, he has maximum 200 rupees. So we take it 30 into x, amount he will spend is always less than equal to 200, क्योंकि ये तो ज़्यादा वो स्पेंड कर ही नहीं सकेगा बेटा, क्योंकि 200 तो ज़्यादा और को पॉकेट मनी है नहीं. ओके, सो नाउ we will try to calculate the value of x. Okay, the value comes out to be beta, okay, 6.6. Now x is less than 6.6. This implies value of x equal to 6 beta. और value of x 6 हो गई है बेटा. Why? Because वो इनकम्प्लीट आए तो है नहीं, कोई शॉपकीपर गया उन्होंने आर्टिकल तोड़ के विचालों दे दूगा ब्रेक करके, वो आर्टिकल ब्रेक नहीं कर सकूगा. तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटीजर फॉर्म च होंगे 6.6, दैट इज टोटल इंटीजर किन्ने होंगे 6 होंगे ਜਿਹੜੇ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ. ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ, ਨਾਓ we will start doing a question of this exercise. Beta, before doing question of this exercise, I want to tell you about rules of linear inequalities. When a linear inequality get changed beta, when it gets changed. Okay, बेटा लीनियर इनइक्वालिटी ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ
देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ, ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਬੇਟਾ x ਵੈਲਿਊ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਧਰ x ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇੱਧਰ y ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਆ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय प्लस वैल्यू, ठीक है, प्लस वाली कोई भी वैल्यू ना मैं इन्होंने मल्टीप्लाई करदा, साइन रिमेन अनचेंज, ओके। बट जदों ही बेटा इवन जे आप डिवाइड भी करांगे, ठीक है, ओके, तां भी साइन की रहूगा, अनचेंज रहूगा। बट जदों आप इनू माइनस ना मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कोई माइनस वाली वैल्यू एक्स ना, ठीक है, इधर भी माइनस वाली वैल्यू, ओके, उदों आ साइन बेटा चेंज हो जाऊगा जो लीनियर इनइक्वैलिटी के विच माइनस एक्स मल्टीप्लाई लैस दैन इक्वल टू 1 वाई इंटू माइनस, उदों माइनस का लीनियर इनइक्वैलिटी का साइन चेंज हो जाएगा बेटा, दैट इज की हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू। सो ये रिजल्ट में याद रखना, जो भी तुम माइनस ना मल्टीप्लाई करोगे टू वैल्यूज नू, द साइन ऑफ लीनियर इनइक्वैलिटी गैट्स चेंज, ओके। नाउ लैट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। Come to exercise questions बेटा। First question बेटा, it is a question of exercise 6.1, exercise 6.1 बेटा। मैं ज़्यादा सिंपल सम सॉल्व नहीं करूँगा, ओके, थोड़े ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ डिफिकल्ट ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ज़्यादा कॉम्पलैक्स ਆ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ सॉल्व करूँगा, ओके। क्वेश्चन है 2x - 1 upon 3 greater than equal to, okay, 3x - 2 upon 4 minus 2 minus x upon 5। we have to solve this linear inequality। बेटा टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, क्योंकि लीनियर इनइक्वैलिटी ने इक्वैलिटी वांगू ही बिहेव करना, इट बिहेव as same as the sign of equality। बस remember that whenever you multiply both side by minus, the sign of linear inequality gets changed, okay। so firstly we will try to solve left hand side beta, right hand side as it is, okay। try to solve left side beta, multiply it by 5 and this value by 4 and 4 into 5, okay। the linear inequality 5 into 3x minus 2, that is we are taking just simplifying as you are doing it in your previous classes beta, we are just solving it, okay। 5 4 ja 20। next beta again 5 3 ja 15x minus 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 minus 8 plus 4x, ओके बेटा, अपॉन 20। नाउ बेटा x वाली वैल्यूज 15x plus 4x that is equal to 19x and minus 10 minus 8 बेटा that is equal to minus 18 upon 20, 2x minus 1 upon 3। as we do in case of equality, we will solve it by cross multiplication। here we also again we solve it by using cross multiplications beta method। now multiply 20 into 2x minus 1, okay, greater than equal to 3 into 19x minus 18, okay। try to simplify it, 40x minus 20 greater than equal to 19 3 ja 57x minus 54, okay। now beta try to take x values of x on either on left hand side or on right hand side, it's depend upon you beta। take it on the left hand side, okay, minus 20, this value comes here, if
प्लस दी होगी 54 माइनस 20 ग्रेटर दैन इक्वल टू 57x माइनस 40x. ओके, नाउ बेटा द वैल्यू कम्स आउट टू बी 34 ग्रेटर दैन इक्वल टू 17x. ओके, नाउ बेटा 17 इधर जाके डिवाइड हो जाऊगा, ठीक है, जब ये भी लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 17. ओके बेटा, सॉरी आई विल राइट इट हेयर बेटा. 34x ग्रेटर देन इक्वल टू 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x. नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय 17. बेटा इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों पास 17 ना डिवाइड किया, 17 ना 17 कैंसल, इतने गए 2, दैट इज 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, और वी कैन आल्सो राइट इट एज x इज लेस देन इक्वल टू 2. I hope you understand this sum beta, how to solve a linear inequality. It is just as simple as you can solve it with equality sign. Okay, just take care, whenever you multiply both side with minus, the linear inequality gets changed. Okay, next question beta, let's move to next question. I hope you understand beta and enjoying my lecture. If you have any kind of problem, just contact me beta anytime. I will always try to help you. Next question, let us suppose beta the question is of same exercise. The question is 22nd question beta. To receive a grade A beta, किसी बच्चे ने बेटा ग्रेड ए लेना वा, टू रिसीव आ ग्रेड ए, ठीक है, उन्हें 5 एग्जामिनेशन बच्चे अपीयर होना, ठीक है, वो चाहता वा बेटा द स्टूडेंट वांट्स दैट हिज मार्क्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 90%. ओके, जानी कि जिन्ने भी वो टैसट अपीयर करे बेटा उन्होंने सारा दे विच उहदा जिहड़ा सम आ वो 99 ज़्यादा रहे, 99, ठीक है. लैट जे उहदे मार्क्स गिवन आ कि उन्हें फर्स्ट एग्जामिनेशन चो किन्ने मार्क्स लए आ, सैकेंड चो उन्हें किन्ने लए, ठीक है, थर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स पता, फोर्थ दे भी आपां नूं गिवन आ बेटा, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन 5, ठीक है. 5 दे आपां फाइंड करने, उन्होंने बेटा सपोज कर लो, लैट कर लो कि ये एक्स आ. ओके, हुण जिहड़ी फर्स्ट एग्जामिनेशन आ बेटा उहदे मार्क्स अपने कोल हैगे आ 87. ओके, फर्स्ट दे किन्ने आ 87. सैकेंड एग्जामिनेशन के मार्क्स आ बेटा 92, जिहड़े सैकेंड एग्जाम पेपर दिता उन्हें उस 92 मार्क्स मिले, थर्ड चो उन्होंने मिले बेटा 94. ओके, एंड जिहड़ा फोर्थ एग्जामिनेशन आ वो चो उन्होंने मिले 95. हुण स्टूडेंट बेटा सिंपली ये बेटा मीन का कंसैप्ट लगना, एवरेज मीन का. ओके, अपने कोल जिहड़ा इहदा एवरेज मीन आ सारे टैसट का वो 90 तो अबव रहना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट चाहता वा कि वो 90 तो ज़्यादा मार्क्स रहन. सो वी हैव टू ऐड ऑल दी वैल्यूज़ एवरेज मार्क्स, वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स. ओके, ऑफ स्टूडेंट, दैट इज एवरेज मार्क्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 90. नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट एवरेज मार्क्स बेटा, इट्स क्वाइट ईजी. 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 एंड 5th एग्जामिनेशन च बेटा वो कितने मार्क्स आए एक्स, प्लस एक्स अपॉन 5 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 90. ओके, नाउ 5 इधर क्यों रहा डिवाइड ऑन द राइट हैंड साइड, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बेटा. द वैल्यू कम्स आउट टू बी, the values comes out to be 94 plus 95 450, that comes out to be 450. adding these 4 values बेटा इन्हां 4 values नूं ऐड कर दो, ठीक है, कितनी आऊगी वैल्यू 368. ओके, 368 प्लस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 450. ओके, 368 में उधर जाके माइनस करो, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना आ गया बेटा 82. 450 माइनस 368
x greater than equal to कितना आ गया 82 ओके सो स्टूडेंट्स ਨੂੰ बेटा स्टूडेंट ਨੂੰ किन्ने मार्क्स चाहिए स्टूडेंट ਨੂੰ मार्क्स चाहिए 82 मार्क्स चाहिए ओके 82 बेटा I hope you understand this sum beta this is a question number 22nd I think yeah I am checking this is a question number 22nd beta question number 22nd of your NCERT book now I am going to solve beta the last question of this exercise okay it is also a very interesting question beta in this question a person want to beta cut an article beta or any box or any chart ठीक है उन्हें कट करना वा into 3 pieces बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੱਟ 3 ਲੈਂਸ ਫਰੋਮ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਆਫ ਅ ਬੋਰਡ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੋਰਡ ਆ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਰਡ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰਾ ਬੋਰਡ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਪੀਸਿਸ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦਾ ਫਸਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ 3 ਪੀਸਿਸ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਫਸਟ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸੈਕੰਡ ਪੀਸ ਆਪਣਾ ਓਕੇ ਤੇ ਆ ਥਰਡ ਪੀਸ ਆ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੇਅਰ ਦ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ 91 ਮੀਟਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੌਰੀ 91 centimeter okay and next beta the question is saying the second length is to be 3 centimeter longer than the shortest length ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਥ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਊਂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਲੈਂਥ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 3 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਆ ਠੀਕ ਆ ਆ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ x + 3 ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ longer than the shortest by 3 ਹੈ ਨਾ and the third length is to be twice of the shortest ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਲੈਂਥ ਬਚੀ ਆ ਲੈਂਥ ਬਚੀ ਆ ਇਹਦੀ ਡਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ that is 2x I hope you all understand ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ x ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ x + 3 ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਆ ਉਹਦਾ ਟਵਾਈਸ ਆ ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣਾ ਬੇਟਾ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਓਕੇ ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਟ ਬਾਈ 2 ਨਾਓ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 91 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਓਕੇ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਵੇਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ x + 3 + 2x ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਟਾ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੈਂਥ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ 91 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 91 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਬਚ ਜਾਵੇ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦਾ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 4x + 3 <= 91 ਓਕੇ ਬੇਟਾ 4x <= 91 - 3 ਬੇਟਾ ਓਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ that is it comes out to be 4x <= 88 okay and x <= 22 ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ x ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 22 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਓਕੇ <= 22 ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ the question in second condition beta he says what is the possible length of the shortest board if third piece is to be at least 5 centimeter longer than second ठीक है third piece ਹੁਣ third piece ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਆਹ ਵਾਲਾ piece ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ
वट शुड बी लेंथ एक्स उदों कितनी होगी, वट शुड बी लेंथ ऑफ दी पीस, ठीक है। जे थर्ड पीस बेटा ਜਿਹੜੇ सैकेंड पीस आ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ शॉर्ट ਹੋਵੇ, सॉरी ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 5 ज़्यादा ਹੋਵੇ बेटा, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 5 ज़्यादा ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2x, ओके 2x is greater than equal to, yes 2x is greater than equal to x plus 3 plus 5। देखो बेटा उन्हें कहा जो थर्ड पीस आ वो ये तो 2x इज ऑलवेज उन्हें कहा वा 2x वाला जो पीस आ ये तो 5 ज़्यादा होना चाहिए सैकेंड वाले तो आप आ पीस वाली साइड आप 5 ऐड करते, ओके। तो कंडीशन की बनी हुण इनू जो लीनियर इक्वलिटी देखो 2x वाला पीस छोटा तो हो नहीं सकता, ठीक है। आप इनू ये ऐड किया 5, ओके कि लीनियर इनइक्वलिटी फॉर्म कर ली। हुण 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू x प्लस 8, एक्स जाके की हो गया माइनस, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा अपने को, एक्स की वैल्यू आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, ओके। हुण देखो इन्हां दोनों कंडीशनस नूं बेटा इन्हां दोनों कंडीशनस नूं तुसीं की करो सम अप कर दो, इकट्ठियां कर दो, कंबाइन कर दो, तो एक्स की वैल्यू कित्थों आऊगी बेटा, एक्स की वैल्यू 8 तो ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। x is greater than equal to 8 and x is less than equal to 22, okay। If we want to divide this board in such a way that both conditions get fulfilled, the length is greater than equal to 8 and less than equal to 22, that is the smallest piece we have to choose is lie between 8 and 22। I hope you understand this question beta। Now if you have any problem please contact me। Now let's move to the next question and next exercise beta, that is exercise 6.2, okay। The question of exercise 6.2 beta, this exercise is based on graphs, graphical सॉल्यूशनस फाइंड करने बेटा लीनियर इनइक्वलिटीज़ से, ठीक है। आपको शेड करके देखना कि वह सॉल्यूशन कितने एग्जिस्ट करूगा। हुण देखो बेटा ग्राफ तो एज इट इज़ बनाने हैं जिमें तुसीं पहलियां क्लासां बनाने आए हो, इन 10th क्लास यू मेड सो मैनी ग्राफ एंड हेयर वी हैव सेम मैथड ऑफ ड्राइंग ग्राफ्स। सो आई विल सॉल्व द सम दैट इज क्वेश्चन 6.2 द 8th क्वेश्चन बेटा, ओके 8th क्वेश्चन सॉल्व करदा। द क्वेश्चन है बेटा थोड़े को 3y माइनस 5x इज लेस दैन 30, ओके। यू हैव टू ड्रॉ दी ग्राफ बेटा, कला ग्राफ नहीं ड्रॉ करना उन्होंने शेड भी करना, ठीक है। शेड करना ग्राफ नूं कि इहदा सॉल्यूशन कित्थे एग्जिस्ट करूगा, ठीक है। वो मैं दसदा किवें, एज यू हैव find the solutions of this equation in your early classes, now use the same method बेटा। इत्थे less than की जगह इक्वलिटी ही रखो बेटा, 3x सॉरी 3y माइनस 5x इक्वल टू 30। तुसी बेटा इनू इस तरह ही सॉल्व कर लो इक्वलिटी ना लैस दैन द साइन अप मैं तुहानूं बाद च दसूँगा कि की लोड़ आ की हैल्प करूँगा, बट यू हैव टू सॉल्व इट बाय 3y माइनस 5x, ओके। नाउ बेटा टेक if we put y equal to 0 बेटा, then x equal to बेटा -6, ओके। जे y की वैल्यू बेटा तुसी 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू -6 आ जाऊगी। y की वैल्यू 0 पुट की, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -6, ओके। नाउ पुट y इक्वल टू x इक्वल टू 0 बेटा, 3y माइनस 5 इंटू 0 इक्वल टू 30, ओके। दैट इज 3y इक्वल टू 30, दैट इज y इक्वल टू 10 बेटा, ओके। सो हुण आपां वैल्यू कितनी पुट की बेटा,
हुण मैं y नूं 0 पुट करता, x की वैल्यू 10 पुट करती। ओके, ओ सॉरी, x नूं 0 पुट किया तो y की वैल्यू 10 आ गई। नैक्सट बेटा एक पॉइंट होर लै सकते हो, जो मर्जी ले लो, जो तुहानूं ईजी लगता। ओके, लेट अस सपोज आप y नूं 3 ले लें बेटा, y नूं लिया 3 बेटा, 3 इंटू y नूं 5 ले लो, 3 5 ज 15 आ जाओ, सौखे बन जाएंगे फैक्टर, कैंसलेशन सौखी हो जाओ। ओके, इक्वल टू 30। नाउ माइनस 5x इक्वल टू बेटा 30 माइनस 15। ओके, दैट इज x इक्वल टू -3। जो सॉल्व करोगे x की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, y नूं 5 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3। y नूं 5 पुट कर रहे हो, x की वैल्यू -3 आ रही है। ओके, जस्ट ट्राई टू प्लॉट दी ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। ओके, okay, here x is -3 beta, I am just taking -1 -2, I know that these points are smaller but you have to -1 -2 -3. okay, now beta here you can take point -6 also, x की वैल्यू -6 तक जा रही है, so we have to take -5 -4 -5 -6. okay, and next take value x1, x की positive values, yeah, x1 2 3, there is no need of x positive बेटा, 0 तक ही चाहिए x की वैल्यू, y की वैल्यू 10 तक चाहिए। ओके, सो 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ऊपर जाके मैं सीधे डायरैक्ट इत्थे 10 ला देना बेटा, प्लीज़ अंडरस्टैंड करियो। इत्थे मैं जी वैल्यू ला रहा वा, ग्राफ नूं उपर कर रहा, इत्थे y की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। ओके, नाउ ट्राई टू ड्रॉ दी ग्राफ बेटा। देखो x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 0 बेटा, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट वेयर x इक्वल टू बेटा x कितना वा, देखो ध्यान आ, x 0 आ तो y x -6 आ, y कितना वा 0। ओके, ये कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट बेटा द कोऑर्डिनेट इज 0, 10, दैट इज योर पॉइंट, हेयर इज दिस पॉइंट बेटा, दैट इज 0, 10। ओके, नेक्स्ट बेटा -3, 5, -3, 5 बेटा, हेयर इज अ पॉइंट 1 2 3 4 5, हेयर इज अ पॉइंट। ओके, दिस इज अ पॉइंट -3, 5। ओके, this is a point -3, 5. now let us join this points बेटा, join करो इन्हां points ने, एक लाइन जाऊगी जी तिन्ने पॉइंट्स के विचों पास होके जाऊगी। ओके, दिस लाइन passes through all the 3 solutions, ये solution ही है बेटा। नाउ what we have to do next, देखो बेटा इत्थे साइन इक्वैलिटी का नहीं, इत्थे साइन तुहाडे कोल काहदा वा लैस दैन दा वा। ओके, तो ये सल्यूशन कितने एग्जिस्ट करनगे, वी हैव टू फाइंड द सल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड शेड इट बेटा, ग्राफिकली अपन शेड करना। ठीक है, तुसी की करना बेटा, जिहड़ा कोऑर्डिनेट आ 0 0 ओरिजिन कोऑर्डिनेट आ, इनू ये पुट करके देखना, जिवें इत्थे इहदी वैल्यूज पुट करदा 3 इंटू 0 -5 इंटू 0, ठीक है, लैस दैन 30, 3 इंटू 0 0 0 -0 लैस दैन 30, दैट इज 0 इज लैस दैन 30। देखो बेटा ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ट्रू है, यस इट इज़ ट्रू बेटा, 0 इज ऑलवेज लैस दैन 30, सो यू हैव टू शेड द ग्राफ टूवर्ड्स द 0, 0 वाल नूं शेड कर देना। ओके, दिस इज योर फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन का मतलब जिहदे बहुत सारे आंसर बन सकते हैं, ये इक्वेशन है, बहुत सारिया एक्स ते वाई दी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकदियां जिहड़ियां सल्यूशन दे सकदियां, पर जे तो बाहर कोई भी वैल्यू पुट करांगे तो ये कंडीशन में फुलफिल नहीं करूगी। लेट अस सपोज मैं टेक करदा एक वैल्यू पुट करके दिखाना, इत्थे आपां वैल्यू पुट कर दिंदे आ -4, 5, वो इत्थे आऊगी बेटा -4, 5। जे मैं -4, 5 इहदे विच पुट करा तो बेटा ये जिहड़ी इक्वेशन आ ये की हो जू, सॉल्व नहीं होगी, ये सल्यूशन आ साइन इनू सैटिस्फाई नहीं करूगा। देखो तो
इत्थे कितना पुट करदा x कितना वा x बेटा हैगा वा तुहाडा -4 x पुट किया -4 ठीक है तो y पुट किया बेटा आपां 5 ओके चेक करो बेटा 5 5 जा 25 ठीक है 3 4 जा 12 ओके -12 ओके एक मिनट वेट -4 -3 -4 and 5 y 5 -4 and 5 okay we have to take another point -7 0 ले लो बेटा इतो कोई भी पॉइंट लो -7 0 that will also -7 0 oh sorry the equation is 3y minus 5x so we have to put 5 here okay and if we want to check this point beta -4 5 ठीक है देखो ये पॉइंट इनू सैटिस्फाई नहीं करूँगा 3 × 5 बेटा ठीक है -5 × -4 that is 15 plus 20 okay less than 30 15 plus 20 is 35 35 is not less than 30 so you have checked that 35 is greater than 30 okay if 35 is greater than 30 so our value is wrong that is out of the shader region तो बाहर आए पॉइंट ओके होर भी पॉइंट पुट करके सैटिस्फाई करके देखो वो सैटिस्फाई नहीं करनगे ये पिछला जो मर्जी पॉइंट पुट करोगे if you put any point inside this region it always satisfy okay this is called feasible region I hope you understand this beta next question next question is again a graphical question but this question is little bit complex okay here we have two solutions beta the question is 3x plus 2y the equation of question is this is question number question number 14 of exercise 6.3 beta exercise 6.3 ਦਾ 6.3 ਦਾ बेटा क्वेश्चन नंबर आप 14th करने जा रहे हैं ओके क्वेश्चन नंबर 14th दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 14th बेटा ओके तो इक्वेशनस आपको गिवन है कुछ आपको ग्राफिकली मैथड ना सॉल्व करना फर्स्ट इक्वेशन ही बेटा 3x plus 2y less than equal to 150 बेटा ओके सेकंड इक्वेशन इज बेटा x plus 4y is less than equal to 80 okay next is beta x is less than equal to 15 y greater than equal to 0 comma x is also greater than equal to 0 but don't बेटा जी ये वैल्यूज है ना एक जस्ट इन्ना ही रिप्रजेंट कर रही हैं कि वैल्यू लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो ये इक्वेशन को देख के डरना नहीं फेयरफुल नहीं होना ये तो थोड़ा काम आसान कर रही है वा कि एक्स ते वाई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 0 आ तो यदा मीनिंग की आ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच ओके तो इन्हों कोई सिंपलीफाई नहीं करना ओके तीन वैल्यूज आप एक इन्ना आ लाइन इहदा ग्राफ प्लॉट करना एक इहदा ग्राफ प्लॉट करना ओके इहदा ग्राफ भी अपना स्ट्रेट लाइन ही बनूगा एक्स इक्वल टू 15 का देखो फर्स्ट इक्वेशन की है 3x plus 2y less than equal to 150 बेटा ओके पुट एनी टू वैल्यूज बेटा एनी टू वैल्यूज पुट x देखो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस बेटा एक्स वाई पुट x इक्वल टू 0 बेटा देन y इक्वल टू बेटा 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा दैट इज 75 ओके पुट y इक्वल टू 0 देन x बिकम्स बेटा 3 5 जा 15 okay I am solving with just 2 points okay you will take 3 also okay next beta next equation is x plus 4y less than equal to 80 okay you may take 1 point more beta but I am solving it with only 2 points okay
here if we take x equal to, let us suppose we take x equal to 40, okay, if we take x equal to 40, okay, y equal to कितना आ जाऊगा बेटा 10 आ जाऊगा. if we take x equal to 20, let us suppose 30 ले लो 20 ले लो कुछ भी ले लो 20 ले लो, ठीक है, तो ये आ जाऊगा 15. ओके हुण देखो बेटा ये वैल्यूज़ नाल तुसी एक ग्राफ बनाना, ये जिहड़ा आ दित्ती हुई है x लैस दैन इक्वल टू 15, इनू तुसी किवें ट्रीट करना x इक्वल टू 15, ठीक है, जिहड़ी भी ये लाइन हुंदी आ x इक्वल टू 15 दैट इज x इक्वल टू a, ठीक है, ये हमेशा वाई एक्सिस के पैरल होंगी है, पैरल टू वाई एक्सिस याद रखना वा जो भी ड्रॉ करना, पैरल टू वाई एक्सिस. ओके सो आप ड्रॉ करते हैं ग्राफ में. देखो पॉइंट्स आप 10-10 के 20-20 के डिफरेंस ना ले लियो, ठीक है, 10 ना भी ले सकते हैं 20 ना ले सकते हैं कि अपना ग्राफ वधिया बन जाए. सो मैं इत्थे बेटा 20-20 का 10-10 का डिफरेंस नहीं लेंदा, 10-10 का ले लेना 10 20 30 40 50 60 70, क्योंकि वाई की वैल्यू कितने तक रिक्वायर्ड है 75 तक. सो मैं ग्राफ लिया 80 तक. ओके नैक्सट बेटा दिस इज योर वाई एक्सिस. ओके दिस इज एक्स एंड एक्स डैश वाई डैश. नेक्स्ट बेटा दिस इज योर ओरिजिन. ओके नाउ एक्स 50 बेटा 50 तक चाहिए या मैक्सिमम 50 हुई 1 1 2 3 4 5 6 7. ओके फिर भी मैं ज़्यादा ले लेना पॉइंट, वैसे लोड नहीं की. 10 20 30 40 50 60 70. now let us try to draw the graph beta of this. first beta x0 y 75, where is the point y 75, the y 70.5 is 75 point is this beta. okay here this coordinate is 0 comma 75. okay now second beta second coordinate is 0 comma 50. okay 0 comma 50, where is 0 comma 50, here beta this point is 50 comma 0 sorry 50 comma 0. पहला हमेशा एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखा जाता, ठीक है. हुण इन्हां दोनों नूं जे ज्वाइन करूँगा बेटा तो फर्स्ट लाइन दी प्लॉट हो जूगी. दिस इज योर फर्स्ट लाइन. ओके नाउ बेटा सेकंड ग्राफ 10 comma 40 10 comma 40 x y 10 तो x 40, where it is here beta 40 almost here 40 comma 10 40 comma 10 beta. okay next beta next point is 20 comma 15 20 comma 15 almost here 20 comma 15. okay 40 comma 10 yeah and 20 comma 15. okay so here is the line will pass from 10 20 comma 20 comma 15 20 comma 15. join these two points also beta. I am using another marker. okay so like this beta. हुण दो लाइन्स बेटा ड्रॉ हो गई. ओके एक आ लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है, जी रैड जे कलर ना दिख रही है. ओके एक ब्लू कलर ना दिख रही है. ओके हुण आ दोनों लाइन्स की मैं इक्वेशनस ना ड्रॉ कर लिया. हुण एक लाइन होर भी है बेटा किहड़ी x इक्वल टू 15. ये कित्थों दी पास होगी बेटा x इक्वल टू 15 बेटा पास होनी है तुहाडी आ देखो नियर अबाउट
वाई एक्सिस के पैरल बिल्कुल ओके वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरल बेटा 15 पॉइंट विचों निकलूगी आ देखो आ पॉइंट किहड़ा वा 15,0 ठीक है ये किहड़ी लाइन की इक्वेशन ड्रॉ की एक्स लैस दैन इक्वल टू 15 कह लो या इनू कह लो एक्स इक्वल टू 15 ओके एक्स इक्वल टू 15 की ड्रॉ की है ठीक है आ कि इक्वेशन ड्रॉ की ये हैगी आ 3x प्लस 2y इक्वल टू 150 की ठीक है तो लास्ट जी रैड वाली है बेटा जी आ जा रही है ये कि इक्वेशन आ एक्स प्लस 4y लैस दैन इक्वल टू 80 ओके हुण जस्ट रह गया शेड करना बेटा हाउ टू शेड कॉमन रीजन यू हैव टू बेटा सब्सटीट्यूट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन यू हैव टू चेक 0 पॉइंट पुट बेटा 0 इन दिस इक्वेशन ठीक है इन फर्स्ट इक्वेशन 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 ओके इज लेस देन इक्वल टू 150 यस बेटा बिकॉज 3 इंटू 0 इज 0 ओके 3 इंटू 0 इज 0 2 इंटू 0 इज 0 0 प्लस 0 इज ऑलवेज लैस दैन इक्वल टू 150 तो ये तो श्योर हो गया कि जी आ लाइन है कि लाइन है 3x प्लस 2y ये नीचे नू सारा शेड होगा ओके जिहड़ा भी पार्ट शेड होगा ये नीचे शेड होगा 0 वाल शेड होगा ओरीजन तक मैं शेड नहीं करूँगा फिर सारा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाऊगा इस करके तो ये याद रखना कि ब्लू वाली लाइन आ ये नीचे वाली सारा पार्ट शेड करांगे अंडरस्टैंड बेटा नैक्सट अगेन पुट 0 हेयर बेटा 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लैस दैन 80 ये ऑब्वियसली बेटा 0 इज ऑलवेज लैस दैन 80 तो आ जी लाइन आ ये भी नीचे वाला पोर्शन सारा शेड होगा रैड वाली लाइन से ठीक है ओके नैक्सट बेटा फिर लास्ट लाइन रहेगी बेटा वो कह रहे एक्स लैस दैन इक्वल टू 15 यदा मतलब 15 तो पिछे जिन्नी भी लाइन हैगी आ एक्स तो 15 तो पिछे जिन्ना भी हैगा वा वो सारा शेड होगा 15 तो पिछे ओके 15 तो पिछे हुण देखो 15 तो पिछे तो सारा आ जाना वा ठीक है बट जिहड़ा आ सारा आ रहा वा ठीक है ये तिन्नां दे विच जिहड़ी तिन्ने कंडीशनां कीतियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾर्ट आ ये कॉमन पार्ट आ ठीक है हुण तुसीं कहोगे सर इधर नूं भी शेड कर सकते नो बेटा क्योंकि पहला गिवन आ कि एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मैं तुहानूं स्टार्टिंग ते कहा सी कि इहदा मीनिंग होंदा क्वाड्रेंट फर्स्ट दे विच वैल्यू लाई करूगी सो जिहड़ी आ वैल्यू आ शेडर रीजन आ ठीक है इट इज़ अ थोड़ा सल्यूशन इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिबल रीजन ओके ऑलवेज सल्यूशन एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू लाइन्स और सॉरी दी ऑलवेज solution exists between this feasible region भी कहते हैं बेटा ना feasible region okay so I hope you understand बेटा now the remaining beta part of this chapter will be I prepare another lecture on it okay I hope you understand this lecture okay the remaining questions there are 2 or 3 questions that are important one I will try to cover it in the next lecture beta because if I try to cover it in my this in the given if I continue this lecture then it will create a big video and very difficult to upload on YouTube so please we will cover it in a next lecture okay thank you beta thank you